बंगारपेट की कुदसिया नजीर में गजब की ताकत, हिम्मत और हौसला। जिंदगी के कई चैलेंजेस को पार करते हुए बनी वेट लिफ्टिंग चैंपियन। जिंदगी के अंधेरों को उजालों में तब्दील करने वाली कुदसिया ने हाल ही में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के शोबे खवातीन के इजलास से खिताब किया। अपने जबरदस्त तजुर्बे की रोशनी में दीगर खवातीन को अहम तरीन पैगाम दिया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। कोई भी नहीं था कि ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, ये एजुकेशन में ऐसे आगे बढ़ना है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये चॉइसेस हैं लाइफ में, जिंदगी में ये करने से कामयाब हो सकते हैं। ये कि कोई भी नहीं था हमें बताने के लिए, बिकॉज माई मॉम शी वाज जस्ट 9th पास and she was so frustrated because she lost her husband. So you can imagine, no parent advocacy, no love caring, and कोई भी इवन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। और फिर मैं आई एम स्पीकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माय सिबलिंग। तो मेरी एक मेंटालिटी थी कि आई यूज्ड टू ऑब्जर्व द थिंग्स अ लॉट, कि आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है, एंड लोग हमारे साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, बिकॉज वी डिड नॉट हैड अ फादर। सो कम नजरियात से देख रहे थे लोग। आई डिड माई स्कूलिंग and I did my PU. When I was 18, I got the job, government job. I got the job on compassionate grounds. My father's job in KSRTC. In Kolar Division, I had read my 10 years of service, and then I have been transferred to Bangalore. Then I got married when I was 22 years old. Then in 24, I had been blessed with a son. I got cesarean section delivery. So after that, when I became the domestic violence fighter, I cannot say that victim. When I became the domestic violence fighter, then I realized, what about Khutsia Nadir? Who is Khutsia Nadir? What can Khutsia Nadir do it? Is she has come to live this sort of life? And when I realized it, when I studied about the human quotient, like what is intelligent quotient, what is creative quotient, what is emotional quotient, and what is spiritual quotient, and this, when I got to know about this knowledge, then I found myself. When I went to the gym to lose my weight, on that time was 80 kilos. When I started working out at the gym, I felt like this is my world. I have found my world. And I was so crazy. I used to lift weights like 120 kilos of deadlift. And weights का पता ही नहीं चलता था मुझे. Because I was crazy of lifting weights. I was in love with the iron. So जिंदगी इतनी नहीं है. जिंदगी आपको बहुत खूबसूरत है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकती है। हमें कैसा जी सकती, खुल को जी सकती। किसी की एक दबाव में आपको जिंदगी जीने के लिए अल्लाह ताला हमें नहीं पैदा करता है। We have to live on we need to live our life with example, not by instructions. और उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल हुआ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड में व्हेन आई अर्न गोल्ड मेडल इन द डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे ओलंपिक मेडल के जैसा दिखा वो। आई वाज सो हैप्पी ऑन दैट टाइम। Then I was selected for the state championship. I earned gold even there. For nationals, I have won 40 medals. Silver, gold, and bronze medals.
And in international championship in South Korea, I have earned 3 gold medals in South Asia Pacific Master Games weightlifting championship. In Europe, Greece, Athens, I have earned a silver medal in World Championship, and in Australia Commonwealth Games, I have earned a gold medal for India for our community, for girls especially. And in December 2022, I have lifted 300 kilos of weight after cesarean section delivery. So I'm the first woman in the world to hold this world record. You can Google my name. ये सब कैसा हुआ? ये सब अपने आप के ऊपर इख्तियार रखने से, अपने आप के ऊपर एक भरोसा रखने से. So believe in your inner self. Don't believe in others. Don't depend on others. You can do it. See, when the Aisha asked like in which language you are convenient, I was so surprised. You are so talented, mashallah. You are so skilled. तो क्या करती है? सभी स्किल्स रखते, सभी रख ले, कोई इतना टैलेंट रख ले, क्या करती है? उसे पूछने दोनों को, बढ़ाना सो, कैसा बढ़ाना सो, इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में समझो, इसके बारे में रिसर्च करो, R&D करो. जब तुम एक ख्वाहिश रखती हो, उसके बारे में बड़े बड़े ख्वाब देखो. छोटे सोच से कुछ नहीं होता, बड़ी सोच रखना. तो मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं आउट ऑफ कंट्री में स्पीकर बनाकर को. तो आई गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर. So I was the esteemed speaker in Harvard University, and I have received the Global Leader Title Award there. You can Google it, you will get the information. How is it possible from Bangarpet to Boston? In Bangarpet there was nobody to support. In Boston there were so many people to appreciate. How did it happen? How did it happen? It happened because I did not give up. I did not stop believing in myself. हर कदम वो जिंदगी इतना गलीज नीचे फटकती है, तो you have to raise yourself stronger and stronger again and again. तो बड़े ख्वाब देखो, बड़ी चाहत रखो, बड़ी सोच रखो, अपना वक्त बर्बाद न करो, वक्त अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करो. तो जिम जाओ, पॉजिटिव रहो, फिजिकल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ो, मेंटल टफनेस के बारे में पढ़ो. तो ये सब चीज़ों से मालूम होता है कि ह्यूमन बॉडी कैसा काम करती है, कैसा एक्टिवेट होती है हमारे न्यूरोसेल्स, हमारे न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एक पॉजिटिविटी में आपको हमें मैनिफेस्ट में एक चीज के बारे में करें तो वो सच्चाई में कैसे तब्दीली होती है. Start reading about it, start manifest, start visualizing. और बहुत आला दर्जे को देखो अपने आप को. जब कोई भी आपके बारे में नेगेटिव बात कर रही, डोंट बिलीव इट. आपका नजरिया, आपकी उम्मीद बहुत बड़ी रखो. उम्मीद से सब कुछ होता है. तो अपने आप के ऊपर भरोसा और उम्मीद से. तो thank you for inviting me, and I'm feeling so blessed to meet you all. Or all the best for your future. I know you're all visionary leaders. Thank you so much. Thank you. बेंगलुरु में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की विमेन विंग AWE और ओबंटो की शानदार पहल. बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन को फराहम की गई एडवांस डिजिटल ट्रेनिंग. जी हां, एडवांस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग फॉर वीमेन. इस मौजू पर बेंगलुरु के HBR लेआउट बैरिज MET हॉल में एक रोजा प्रोग्राम हुआ. वेट लिफ्टिंग चैंपियन कुदसिया नजीर, HBR कांग्रेस के नुमाइंदे कलीम, सुमित्रा मैडम, फोर्टिस हॉस्पिटल डिजिटल मार्केटिंग हेड नंदनी, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के सदर शकील अदीब व दीगर मौजूद थे. नौजवान ट्रेनर शोएब वालिया ने एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर अपना प्रेजेंटेशन पेश किया.
और आसान तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के तरीके अपॉर्चुनिटीज से खवातीन को वाकिफ किया। यहाँ आने वाले तमाम गेस्ट्स ने AWE और ओबंटो एसोसिएशन की तारीफ की और कहा कि खवातीन इल्म और हुनर के जरिए हर फील्ड में आला से आला मकाम हासिल कर सकती हैं, लेकिन खवातीन को इस तरह की रहनुमाई गाइडेंस होना चाहिए। मोहतरमा कुदसिया नज़ीर ने अपनी लाइफ स्ट्रगल को बयान करते हुए कहा कि खवातीन आगे बढ़ें और कुछ कर दिखाने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। तरक्की की राहें मौके खुद ब खुद हासिल होंगे। इस तरह काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बातें इस प्रोग्राम में सुनने को मिली। दोस्तों, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की वुमेन विंग AWE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेस करने वाली खवातीन को गाइडेंस मोटिवेशन फराहम किया जाता है और ख़ास तौर पर घर बैठे बिजनेस करने वाली खवातीन को नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आगे बढ़ने की तरगीब दी जाती है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।